Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Today we are going to discuss the acceleration due to gravity. उसमें जो variation होगा with the you can say the change in latitude. We will be talking about latitude. We will be talking about the change, right? Also उसके बाद हम लोग mass and weight के बारे में discuss करेंगे. And after that we will be talking about the Kepler law in the next lecture. ठीक है, तो इस lecture के अंदर we will be talking about the variation of acceleration due to gravity with the latitude along with mass and weight. These are two different things, right? And we are going to study these three things today itself. All right, so you all know that we do prepare for the school examinations along with your competitive examination like the NTSC, NSCJS, right? We are preparing you for that. So make sure that you study with these lectures. Also that you share these lectures with your friends and other friends and relatives and all, so that they can also be benefited from these lectures. These video lectures are free for everyone, so make sure that everyone can be benefited from that. Alright, now if you want any DPP or study material, you can access them through our Telegram channel. You have to write the code TTB009 in the search box of the Telegram channel or Telegram app. Then our channel appears of the 9th class. You can join that. Alright, that would be very much beneficial for you all. Now see, to make you prepare, alright, to make you prepare for the competitive examinations along with your school examinations, we are actually making these video lectures in the science and the mathematics section, right? So basically we are preparing you for the science and mathematics Olympiads, right? That is the NTSC, NSCJS, PRMO. We are making you preparing for that, and that is the main goal. You can see the team behind me. This is a team which is going to help you a lot because these team are preparing these quality lectures for you all. So make sure that you do benefit from them, study from it, stick with us, and that would be all. Right. In accordance to that, we have prepared some packages for you all. To access those packages, you can go on our website www.talkingtextbooks.in. So if you go on that website, you will be dealing or you can see the two packages, right? The number one is the full package. First one, that is the full package. All right, full package includes all the necessary things you need to fight any competitive examination, right? That means study material focused on that particular exam, right? And you can see the video lectures. You can definitely will be doing the homework. You will be submitting to us. You will be attempting the quizzes twice a week, and then you will be giving the periodic test papers. So all these things are included in one package, and that is termed as the full package already. So if you have any need of the guidance of a proper, you can say a structure of the material, or you can say a proper guidance so that you can prepare for the Olympiads, basically you can join that. Alright, and if you are interested in only testing, then you can definitely join the test series also. And remember that if you are serious about buying them, remember my code CYLive. That's how you are going to get a 30% discount if you use the CYLive code. Make sure you do that. And if you have any query regarding these things, how they are going to benefit you, or even that these things will be helping you or not, you can definitely call us on the number 919549041111. So basically that is all. You can join us, connect with us. You can have all the things, guidance necessary so that you can crack any competitive examination that is in these, right? Join them, and then you can make sure that you are going to fight with them. All right, fight the competitive examination. So let's get started with our lecture. First of all, promise yourself that you are going to watch the whole lecture. You will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. So basically you are going to revise, first of all, every single day. Do not leave any day without revision. जो बच्चा ऐसा करेगा, जो revision daily करने वाला है, that would be the smart student and that will only crack the examination, right? Because जो बच्चा revision करेगा, उसके दिमाग में सारी बातें पहले से clear रहेंगी. So make sure that you do that. Alright, revision बहुत ज़रूरी है. Today's lecture, this is the lecture 6th of the gravitation, and we are going to study the variation in the value of g with latitude and mass and weight. These are the two separate topics, mass and weight, and a separate topic, variation in the value of g with latitude. Alright, that is what we are going to discuss today itself. So we will be dealing with the variation in the value of g due to latitude, difference between small g and capital G, mass, weight, and what is the difference between the mass and the weight.
दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इटसेल्फ। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज जो कि हम लोग देखने वाले हैं, थर्ड पॉइंट है ये हमारा। थर्ड पॉइंट कैसे है, क्योंकि देखो अभी तक हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो चेंज देखा है वो किसकी वजह से देखा है। वी हैव सीन दैट चेंज बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूड, वी हैव सीन दैट चेंज बिकॉज ऑफ द डेप्थ। Now we are going to see the change because of the latitude. What is latitude? I'll be telling you, but before that, इस latitude की वजह से जो चेंज आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में मिलेगा, यानी कि स्मॉल g में मिलेगा, वो दो रीजंस की वजह से मिलेगा। नंबर वन, अर्थ की शेप। अर्थ की जो शेप होती है इट्स नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल। हम अज्यूम करके वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, but in reality it is not completely sphere, it is little bit of flattened at the poles, ठीक है। I'll be telling you how. So basically shape of the earth की वजह से latitude change होता है, and उस latitude की वजह से there is a change in the value of acceleration due to gravity. सेकेंड फैक्टर जिसकी वजह से latitude पे जो है gravity change होता है, acceleration due to gravity change होता है, that is the rotation of the earth. So we all know that earth rotate and days and night happens. Basically क्या होता है कि उस rotation की वजह से you are experiencing a change in the value of acceleration due to gravity. That is what we are going to discuss, how that change can be calculated and written in the formula. Right? तो सबसे पहले हम बात करते हैं shape of the earth की and rotation की. Right? इन दोनों को समझने के लिए आपको क्या समझना चाहिए, लैटिट्यूड। सो व्हाट इज दैट लैटिट्यूड, लेट्स टॉक अबाउट दैट। बेसिकली लुक एट हियर, यहाँ पर देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द यू कैन से शेप ऑफ द अर्थ। नाउ ये कुछ इस तरीके की शेप है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल पर इट इज लिटिल बिट ऑफ फ्लैटेंड एंड इक्वेटर, ठीक है। सो एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है, जो साउथ पोल है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, अर्थ फ्लैटेंड है। नाउ इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द लैटिट्यूड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज, देखो लेट्स से ये जो ए पॉइंट है, ठीक है, इस ए पॉइंट पर दैट इज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, राइट। तो हम जानना चाहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड एट पॉइंट ए, वी वांट टू नो दैट, राइट। सो लैटिट्यूड इज द एंगल, लैटिट्यूड वो एंगल है जो कि सेंटर ऑफ द अर्थ से ए जो प्लेस है उसको ज्वाइन करती हुई लाइन इक्वेटोरियल प्लेन से क्या एंगल बनाती है, दैट इज लैटिट्यूड। आर यू गेटिंग इट? लैटिट्यूड वो एंगल है, वो एंगल जो कि इक्वेटोरियल प्लेन से बनता है, और उस एंगल को कौन बनाता है, द लाइन ज्वाइनिंग दैट प्लेस एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट। तो अगर आप कोई भी प्लेस है, अगर आप किसी प्लेस का लैटिट्यूड जानना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, वो जो प्लेस है उस प्लेस को डायरेक्टली आप ज्वाइन करो सेंटर ऑफ द अर्थ से, और फिर चेक करो कि वो जो लाइन आपको मिली है वो इक्वेटोरियल प्लेन से कितना एंगल बनाती है। अगर ये आपको पता चल गया, दैट मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग द लैटिट्यूड, ठीक है। इट्स एन एंगल, ठीक है, बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड इक्वेटोरियल जो प्लेन है उसके बीच का एंगल, ठीक है। सो दैट इज द लैटिट्यूड, दैट इज द लैम्डा, इट इज डिनोटेड बाय द लैम्डा, ठीक है। देखो यहाँ पे द लैटिट्यूड एट अ प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डिफाइंड एज द एंगल which the line joining the place to the center of the earth makes with the equatorial plane. तो बेसिकली हमें यह पता होना चाहिए कि जो भी प्लेस हम, जिस भी प्लेस का हम लोग एक तरीके से लैटिट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो प्लेस को हम सबसे पहले ज्वाइन करेंगे सेंटर ऑफ द अर्थ से। उसके बाद जो लाइन हमें मिलेगी उस लाइन को हम देखेंगे कि वो लाइन इक्वेटोरियल प्लेन से कितना एंगल बनाती है, और वो जो एंगल होगा दैट वुड बी द लैटिट्यूड। ऑलराइट, अब आप एक और बात ध्यान से देख सकते हैं, वो क्या, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये जो ए प्लेस है, ठीक है, इसका अगर मैं लैटिट्यूड कैलकुलेट करना चाहती हूँ, व्हाट वुड बी द एंगल, एंगल वुड बी द AOE। दिस इज द एंगल विच इज नोन एज द लैटिट्यूड ऑफ दिस प्लेस A। अगर मुझे किसी भी प्लेस का लैटिट्यूड निकालना है, आई वुड बी कैलकुलेटिंग द एंगल। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप पोल्स का और इक्वेटर का भी निकाल सकते हैं लैटिट्यूड। लेट्स डू दैट। आप देखो
पोल पर अगर हम बात करें, एट पोल्स, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, पोल पर अगर मैं देखूं तो पोल ये रहा नॉर्थ पोल, ठीक है, ये रहा साउथ पोल। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये साउथ पोल और सेंटर ऑफ द अर्थ को जोड़ने वाली जो लाइन है, ये लाइन इक्वेटोरियल प्लेन से कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री, राइट? ये रहा ना 90 डिग्री। दिस इज द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। और ये जो लाइन है वो इस इक्वेटोरियल प्लेन से कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। सो एट पोल्स द लैटिट्यूड इज एक्चुअली 90 डिग्री, ठीक है। और इसी तरीके से आप इक्वेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? देखो, इक्वेटर वुड बी हियर, है ना, इक्वेटर ये रहा, और ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर को हमने पहले क्या किया, सेंटर ऑफ द अर्थ से ज्वाइन किया, एंड ये जो लाइन है वो अब इक्वेटोरियल प्लेन से कितना एंगल बनाती है? 0 डिग्री। सो वी कैन से दैट कि भाई इक्वेटर पर जो लैटिट्यूड होता है दैट इज व्हाट? दैट इज 0 डिग्री, ठीक है। नाउ यू नो कि इक्वेटर पे लैटिट्यूड इज 0 डिग्री एंड पोल्स पे लैटिट्यूड इज 90 डिग्री। नाउ यू आर एबल टू कैलकुलेट द लैटिट्यूड ऑफ एनी प्लेस, राइट? Remember to join the place with the center of the earth and now calculate the angle between the line and the equatorial plane. इस तरीके से हम लैटिट्यूड कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो शेप है, इस शेप पे कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो शेप ऑफ द अर्थ पे हमने अज्यूम किया है, अज्यूम क्या, हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं दैट अर्थ इज not sphere, ठीक है। It is not sphere, it is actually a little bit flattened at the poles, both the poles definitely। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? It flattens at the pole, जहां पर लैम्डा कितना है, that is the latitude is how much? 90 डिग्री। और bulges out at the equator, bulges out means it is like going out, ठीक है। ऐसा जैसे किसी ने एक स्फेयर को पिचका दिया हो, तो आप देख सकते हैं साइड में bulge out हो जाएगा, और ऊपर और नीचे का जो एरिया है दैट वुड बिकम फ्लैटेंड, राइट? तो दैट वुड बी टेकन एज द शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं इक्वेटर पे कैसे बल्ज आउट हो रहा है एंड फ्लैटेंड है वो पोल्स पे, राइट? और यहाँ पर देखो इक्वेटर पे द लैटिट्यूड इज 0 डिग्री, ऑलराइट। ये चीज़ें हमको पता चली है। दैट्स वाई हमें क्या पता चला कि अगर अर्थ का ये शेप है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पोलर रेडियस है और इक्वेटर रेडियस है, दी शुड नॉट बी द सेम, राइट? ये सेम नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप खुद से देखो, अगर हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को फ्लैटन माना है, दैट मीन्स दे आर नियर द अर्थ सरफेस एज कंपेयर टू द इक्वेटर, राइट? और एक्चुअली में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो क्या है कि जो इक्वेटर रेडियस है दैट इज द आर ई, दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड इक्वेटर इज एक्चुअली इक्वल टू द polar radius, that is the distance between the pole and the center of the earth, rp, is actually 21 kilometer greater, 21 किलोमीटर ग्रेटर होता है इक्वेटोरियल रेडियस। जैसे 0 O से लेके E, तो OE जो डिस्टेंस है एक्चुअली में जो RE हम बोल रहे हैं, दैट इज एक्चुअली 21 किलोमीटर ग्रेटर देन दिस RP वैल्यू। और ये जो वैल्यू है यहीं से हमें चेंज मिलेगा, ठीक है, यहीं से हमें क्या मिलने वाला है? चेंज मिलने वाला है। सो यू शुड नो दिस थिंग, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेटर जो है वो हमारा 21 किलोमीटर दूर है एज कंपेयर टू दी पोल, ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ रेडियस से हम मेजर कर रहे हैं दोनों का डिस्टेंसेस, ऑलराइट। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। नोट दिस डाउन वेरी फास्ट, फटाफट से नोट करो इसे। राइट, अब हमने जो है ये देख लिया है। नाउ लेट्स कैलकुलेट द डिफरेंस, कहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है और कम है वो हम चेकआउट करते हैं, राइट। तो चलो हम फटाफट से देखने की कोशिश करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू आप सभी को पता हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है दैट इज
m divided by r square. So basically we can write that ये जो g है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर है, राइट, वी कैन राइट दैट. तो अगर मैं पोल्स पे लिखना चाहूँ, एट पोल्स की अगर हम बात करते हैं, सो वी कैन राइट दिस g. पोल के लिए मैं लिख रही हूँ p, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट p शुड बी कितना होना चाहिए, कैपिटल G m डिवाइडेड बाय r p का स्क्वायर. इतना होना चाहिए ना, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल. तो हमें जो रेडियस यूज करना है दैट शुड बी दिस आर पी, है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट. तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. अब अगर मैं इक्वेटर पे बात करती हूँ, इक्वेटर पे क्या होगा, इक्वेटर के लिए आई एम राइटिंग जी ई, डू नॉट कंफ्यूज इट विद अर्थ, ठीक है. हम जी ई एज एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर g को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन सा रेडियस लेंगे, दिस आर ई, इक्वेटोरियल रेडियस लेंगे, राइट. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर द फॉर्मूला जी एम डिवाइडेड बाय आर ई का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2. अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को यूज करूं, ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकालने की कोशिश करूं, व्हाट आई विल बी डूइंग लाइक डिवाइडिंग 1/2, हम लोग इसे कर देते हैं, ठीक है. तो हम 1 डिवाइडेड बाय 2 कैलकुलेट कर रहे हैं. सो जी पी डिवाइडेड बाय जी ई वुड बी, ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं, जी पी और जी ई को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है. जी एम डिवाइडेड बाय आर पी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम. ये मैंने क्या किया आप सभी को पता चला, देखो 1 डिवाइडेड बाई 2, अगर मैं ऐसे इसको डिवाइड कर रही हूँ, ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, राइट. सो हमें क्या करना होगा, हमें डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को इन्वर्स कर देना होगा, दैट इज रेसिप्रोकल कर देना होगा, और मल्टीप्लाई कर देना होगा न्यूमरेटर से. एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन हियर, है ना. इसका हमने क्या किया है, रेसिप्रोकल किया और मल्टीप्लाई कर दिया है. तो देखो जी एम कॉन्स्टेंट कैंसिल आउट. यहाँ पर हमें मिल गया है वैल्यू आर ई डिवाइडेड बाय आर पी का होल स्क्वायर. So as you can see here, Gp upon Ge is actually equal to Re upon Rp का होल स्क्वायर. तो मुझे ये बात बताओ, इसमें से बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, Re बड़ा है या फिर Rp? ऑब्वियसली Re, राइट. 21 किलोमीटर बड़ा है. तो यहाँ पे क्योंकि हम ये बात जानते हैं, सिंस Re इज ग्रेटर देन Rp, ठीक है, हमें ये बात पता चल गई. तो हमें क्या ऊपर वाला नंबर बड़ा मिलेगा, डेफिनेट सी बात है, नीचे वाला नंबर छोटा मिलेगा, डेफिनेट सी बात है. तो दिस रेशियो विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 1. ऑलराइट, अगर हम डिवाइड भी करते हैं तो डेफिनेटली ऊपर वाला जो नंबर हमें मिल रहा है दैट इज बिग, राइट, एंड जो नीचे वाला नंबर मिल रहा है दैट इज स्मॉल. सो वी कैन गेट दैट कि देयर वुड बी लाइक, यू कैन डेफिनेटली राइट दैट, अगर मैं पोल्स की बात करती हूँ तो इट वुड बी आर ई डिवाइडेड बाय आर पी का स्क्वायर टाइम्स ऑफ जी ई. दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग, राइट. तो आप देख सकते हो जी ई दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू एट इक्वेटर में कुछ वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, वो भी 1 से बड़ी, राइट. सो यू कैन से हियर, क्योंकि कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो जीपी का वैल्यू वुड बी ग्रेटर देन दिस जीई, राइट. ये वाला जो जीपी का वैल्यू है दैट वुड बी ग्रेटर देन जीई. क्यों ग्रेटर देन होगा, ये बात तो हमें पहले से पता होनी चाहिए ना. बाय दिस यू कैन से दैट कि भाई पोल्स पे जो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज ग्रेटर दैन इक्वेटर. दिस इज द फाइनल थिंग वी आर गेटिंग आउट ऑफ दिस डेरिवेशन. तो यहाँ पर जो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखा है एट इक्वेटर एट पोल, तो हमें यह बात पता चली कि पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द इक्वेटर, ठीक है. ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर चेकआउट की है, ठीक है. एज यू कैन सी हियर जीपी इज समथिंग सम नंबर टाइम्स जीई, तो दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन जीई, राइट. So we can definitely say that. Note this down, you are going to get this value every single time.
ऑलराइट, तो अभी हमने लैटिट्यूड में फर्स्ट वाला जो वेरिएशन था दैट इज बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ. वी हैव सीन दैट शेप ऑफ द अर्थ की वजह से पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें ज्यादा मिलता है in comparison to the equator. Right, now let's talk about the rotation of the earth. रोटेशन पे क्या फर्क पड़ता है? देखो, कोई भी जो पॉइंट है, ठीक है, हम उसी ए पॉइंट पे लिखने की कोशिश करते हैं. तो हम किसी भी पॉइंट पर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक प्लेस है जो हमने ए पहले एज्यूम किया था वही प्लेस हम अब ले रहे हैं, उस पर अगर मैं लिखना चाहूंगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आई वुड बी राइटिंग जीपी दैट इज एट पोल माइनस आर रेडियस ऑफ द अर्थ ओमेगा स्क्वायर cos square lambda. This lambda is the latitude. This omega square is the angular velocity of the earth. All right. This is what? Angular speed भी बोल सकते हैं आप लोग. ठीक है, तो ये क्या है? Angular speed है. All right. You will getting it. This is the formula by which you can definitely know the effect of the rotation. ठीक है, यहां पर आपको रोटेशन का इफेक्ट देखने मिल सकता है. राइट, या ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है किसी भी प्लेस पे जो है कैलकुलेट करने के लिए द इफेक्ट ऑफ रोटेशन. कैसे? नाउ हियर वी आर इंट्रोड्यूसिंग, देखो रोटेशन का जो मेन फैक्टर है वो उसका जो है वो है एंगुलर स्पीड, और हमने उसी फैक्टर को यहाँ यूज किया है ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, ये फैक्टर ही यहाँ पर डिनोट कर रहा है दैट दिस इज द वेरिएशन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. राइट, अब मानो जैसे इफ आई वांट टू कैलकुलेट दिस वैल्यू एट द इक्वेटर, ठीक है, तो मतलब आई वांट टू कैलकुलेट एट इक्वेटर. अगर हम एट इक्वेटर करना चाहेंगे तो इक्वेटर पे हमें ये बात पता है कि लैम्डा क्या होता है? 0 होता है. राइट, लैम्डा क्या होता है? 0 डिग्री होता है. कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1. राइट, तो यहां पर जब हम इक्वेटर पे लिखेंगे तो व्हाट वी विल बी गेटिंग? माइनस r omega square. That would be the acceleration due to gravity at equator. देखो, pole minus r omega square. तो r omega square, omega is the rotation factor here, right? तो यहाँ पर एक्चुअली में ओमेगा की वजह से, रोटेशन की वजह से the change in the acceleration due to gravity is gp minus r omega square at equator only. ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बस लैम्डा का वैल्यू पुट कर दिया. लैम्डा इक्वल्स टू 0 हो गया. जैसे ही लैम्डा बराबर 0 हुआ, क्या हुआ? कॉस का वैल्यू 1 हो गया. ठीक है, क्योंकि कॉस 0 इक्वल्स टू 1 होता है. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ठीक है, इफ लैम्डा इक्वल्स टू 0 डिग्री तो कॉस लैम्डा वुड बी कॉस 0 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना भाई, तो इसी वजह से यहाँ पर ये पूरा 1 हो गया. कॉस स्क्वायर लैम्डा इज टोटली 1, और 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे हमें सेम नंबर मिलेगा. सो दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द फैक्टर, और इस रोटेशन की वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है. तो हमें काफ़ी सारी ये बातें पता चली हैं कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब कब चेंज होता है. जब हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तब चेंज होता है, डिक्रीज होता है. अर्थ की सरफेस से नीचे जाते हैं दैट इज यू कैन से टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है. अगर हम पोल पे जाते हैं तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द इक्वेटर. राइट, और अर्थ की रोटेशन की वजह से एट एनी प्लेस देयर इज दिस चेंज इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ऑलराइट, नोट दिस डाउन फटाफट से. चलो अभी हम देखते हैं द डिफरेंसेस बिटवीन द स्मॉल जी एंड द कैपिटल जी. ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोग इतने सारे डिफरेंसेस देख रहे हैं. वी ऑल नो सच टाइप ऑफ डिफरेंसेस, बट फिर भी हमको जब लिखना होगा तो एक टेबुलर फॉर्म में आई हैव गिवन यू. आइदर यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, पहले ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर हम समझने चलेंगे. ठीक है, अब हम देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं एक्चुअली इनमें. देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी. ठीक है, अब हमें ये बात पता है कि भाई ये जो जी होता है ये एक्चुअली में क्या होता है? दिस इज द एक्सेलरेशन जो कि एक बड़ी बॉडी की वजह से
लग रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स मास, राइट। एंड यही चीज हम लोग बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। एज यू कैन सी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मतलब एक बड़ी बॉल या फिर यू कैन से द बड़ी ऑब्जेक्ट जितना एक्सेलरेशन लगाती है दूसरी छोटी ऑब्जेक्ट्स पे, दैट इज टेकन एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे हमारी अर्थ की है, राइट। ये हुई चेंज, भाई क्या चीज है, दैट इज एन एक्सेलरेशन। एज यू कैन, इफ वी टॉक अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी, दिस g इज एक्चुअली एक्सेलरेशन एंड दिस g इज अ कांस्टेंट, अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, राइट। तो देखो, gravitational force between two bodies of unit masses separated by unit distance is known as universal gravitational constant. ये जो universal gravitational constant है, this constant is the value of the force between two bodies जिसका unit mass है और जिनके बीच में unit distance है। ये situation अगर create हो गई and उनके बीच में force हमने calculate कर लिया, that would be taken as the constant and that is this gravitational constant. अब हमें ये बताया बात, हमने अभी अभी देखा कि ये जो स्मॉल जी है वो हर जगह चेंज होता है, भाई वो चेंज होता है सरफेस से ऊपर जाने पे, सरफेस के नीचे जाने पे, अर्थ के रोटेशन से, अर्थ के शेप से। सो दिस जी वैरीज एट डिफरेंट प्लेसेस। और अगर मून पे हम जाएंगे वी गेट अ डिफरेंट जी, स्मॉल जी हमें डिफरेंट मिलेगा ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंट मिलेगा, सन पे डिफरेंट मिलेगा, जुपिटर पे डिफरेंट मिलेगा, मार्स, वीनस सब पे डिफरेंट मिलेगा। सो दिस वैल्यू, दिस जी चेंजेस डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस, ऑलराइट। लेकिन ये जो g है, ठीक है, ये जो कैपिटल G है दैट इज कांस्टेंट। तो बेसिकली हम कहीं भी चले जाएं, दिस कैपिटल G विल बी कांस्टेंट, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, ऑलराइट। स्मॉल g देखो, स्मॉल g में अगर हम ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज होगा, नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन ये कैपिटल G है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, तुम चाहे ऊपर जाओ नीचे जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल G वुड बी द सेम, ठीक है। उसके आगे देखो, वैल्यू ऑफ g एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। जो स्मॉल g का वैल्यू है सेंटर ऑफ द अर्थ पे 0 हो गया है, लेकिन ये वहां पर भी कांस्टेंट है, ठीक है, ये वहां पर भी सेम टू सेम कांस्टेंट वैल्यू रखता है, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहां पर देख सकते हैं कि दिस स्मॉल g इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडीज बट दिस कैपिटल G इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। उसके अलावा अब तुम क्या लिख सकते हो, बाकी बचा वैल्यू, इसका वैल्यू लिख दो भैया, सरफेस ऑफ द अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इसका वैल्यू लिख दो 6.67 इंटू 10 की पे -11, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। सो बेसिकली आपको अगर इन दोनों के डिफरेंसेस लिखने में कभी आ भी जाए, मेक श्योर दैट यू राइट दिस। ये जी कहाँ कहाँ चेंज होता है वो लिख दो, सेंटर ऑफ द अर्थ पे चेंज होता है, ऊपर नीचे जाते वक्त चेंज होता है, डिफरेंट बॉडी के लिए डिफरेंट होता है, और ये बेचारा हर जगह कांस्टेंट रहता है। सो बेसिकली यू कैन मेक आउट दोज डिफरेंसेस, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट दिस जी चेंजेस एवरीवेयर। और ये जो कैपिटल जी है दिस इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट डज नॉट इवन कंसिडर एनीथिंग, ये हर जगह में जो है सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, ऑलराइट। अभी फटाफट से देख लो, किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फटाफट से ले लो, देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड एंड टॉकिंग अबाउट अ क्वेश्चन, ऑलराइट। तो यहाँ पर अब जो है हम लोग कर रहे हैं एक क्वेश्चन, दिस इज फॉर यू ऑल, अरे सो डू इट। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोग जल्दी से कर लेंगे, ठीक है, फटाफट से इसे करने की कोशिश करो एंड देन वी विल बी डूइंग इट। तो हम लोग कर लेते हैं इसे फटाफट से, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, GE और GP, यहाँ पे दो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको बताए गए हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो GE इज द अर्थ और अनदर प्लैनेट, कोई और प्लैनेट है जिसका मास और रेडियस ट्वाइस है अर्थ के, ठीक है, मतलब ट्वाइस द मास ट्वाइस द रेडियस, ठीक है। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड दैट ऑफ द प्लैनेट। तो इन दोनों का रिलेशन हमें पता करना है। सो लेट्स राइट दैट, पहले तो हम देख लेते हैं, मास ऑफ दैट प्लैनेट इज एक्चुअली ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, राइट, ये हमें गिवन है, तो ये वैल्यूज हमें क्या हो गई है, गिवन हो गई हैं। फिर देखो रेडियस ऑफ द प्लैनेट, राइट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट भी हमको गिवन है,
सो रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज एक्चुअली ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये चीज़ हमको गिवन है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो लेट्स सी, अर्थ पर अगर हम लिखना चाहें एट अर्थ, हमें जो जी ई की वैल्यू मिलेगी दैट वुड बी कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, राइट। वहीं पर अगर मैं प्लैनेट पे लिखना चाहती हूं तो व्हाट आई वुड बी गेटिंग जी पी, दैट इज कैपिटल जी मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिलेंगी। हमें सिर्फ रिलेशन चाहिए, और रिलेशन हमें कैसे मिल सकता है, रेशियो निकाल दो। Whenever you are asked for any relation, make sure that you do it. रेशियो निकालो, खत्म बात। ठीक है, सो लेट्स डू इट। हम यहाँ पे रेशियो निकाल देते हैं। ठीक है, आई विल बी डूइंग हियर। हमें क्या करना है, जी ई डिवाइडेड बाय जी पी का वैल्यू मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ। सो दिस अगेन हमें क्या मिल रहा है, एक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय अनदर फ्रैक्शन। तो क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय नॉट इक्वल, यहां पे लगेगा मल्टीप्लाई आर पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम पी। तो देखो कैपिटल जी से कैपिटल जी तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भाई, एम पी का वैल्यू 2me, आर पी का वैल्यू 2re। फटाफट से इन वैल्यूज को रख दो। ठीक है, तो एम ई की जगह पे कुछ भी नहीं रखेंगे, एम ई वुड बी एज इट इज डिवाइडेड बाय एम पी की जगह पे रख देंगे 2me। फिर आता है आर पी का स्क्वायर, आर पी इज 2re, तो 2re का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर। ठीक है, एम ई से एम ई कैंसिल, ऑलराइट। यहाँ पे एम ई से एम ई कैंसिल हो चुका है। आप देखो आर ई का स्क्वायर और 2re का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 है ना, 4 बचेगा कि नहीं बचेगा। जी ई डिवाइडेड बाय जी पी वुड बी गेटिंग अस 4re स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2re स्क्वायर। आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल, यू विल बी गेटिंग 2 ओनली। तो अब हमें जो रिलेशन मिल गया है, दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ इज एक्चुअली ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लैनेट। ठीक है, अब तुम सोचोगे कि ये रिलेशन कैसे आया। ये रिलेशन एक्चुअली तुम्हें क्या बता रहा है, तुम थोड़ा सा ना इसको अलग तरीके से सोचने की कोशिश करो, मेंटली इसको करने की कोशिश करो कि अगर मास ट्वाइस कर दिया तब हम लोग ज़रूर बोल सकते थे कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है वो भी ट्वाइस हो सकता था, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, रेडियस भी ट्वाइस कर दिया। ठीक है, ये मेन चीज़ है। देखो कोई प्लैनेट अगर सिर्फ शेप में बड़ा है, उसका रेडियस बड़ा है, उसका मास ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि कौन सा फैक्टर बड़ा है। अगर मास ज़्यादा होता, सिर्फ मास की बात करते, ठीक है, अगर मास ज़्यादा होता तब हम कह सकते थे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट का ज़्यादा होता, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या बात बोल दी गई है कि उसका रेडियस भी ट्वाइस है, जो कि एक रेसिप्रोकल में आता है। मतलब देखो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आता है, राइट। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की वैल्यू से अगर तुम कोई वैल्यू बढ़ा रहे हो तो दूसरा वैल्यू तो डिक्रीज होगा। दैट्स वाई यहाँ पर अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा है, हालांकि प्लैनेट जो है वो बड़ा है, उसका रेडियस भी बड़ा है, उसका मास भी ज़्यादा है, तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का ज़्यादा है। ठीक है, सो यू कैन थिंक इट लाइक दिस, सॉल्व भी कर सकते हो, थिंक भी कर सकते हो, ऑलराइट। चलो अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है ना, अब हम लोग फटाफट से मास और वेट के बारे में भी जानते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट मास। व्हाट इज मास एक्चुअली। देखो
मास का मतलब होता है कि किसी बॉडी के अंदर कितना क्वांटिटी है, जो मैटर है उसका कितना क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड मास किसी भी बॉडी का। लेट्स से वी टॉक अबाउट अ क्यूब, तो वो जो क्यूब है अगर मैं उसके मास की बात करूंगी, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड दैट बॉक्स, इनसाइड दैट क्यूब, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट अ फुटबॉल, ठीक है। तो वो जो फुटबॉल है उसका अगर मुझे मास देखना है, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी फिल्ड इनसाइड दैट बॉल, राइट। तो यहाँ पर जो मास होता है एक्चुअली वो मैटर की क्वांटिटी होती है, राइट। इट इज फिक्स्ड, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m नॉट कैपिटल M। तो देखो, क्वांटिटी ऑफ मैटर पॉजेस्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड द मास ऑफ द बॉडी, ऑलराइट। कितना उसके अंदर मैटर फिलअप है, दैट इज द मास। इट कैन बी आइदर वुड, ठीक है, जैसे वुडन बॉक्स में वुड है उसका मैटर, राइट। हम लोगों के अंदर हमारा ब्लड, हमारे बोन्स, हमारे मसल्स एंड ऑल, राइट। तो ये सब हमारे जो है मैटर है। तो हमारा जो मास है एक्चुअली में दिस इज द सम ऑफ ऑल द मैटर इनसाइड अस, एंड दैट मैटर इज द ब्लड, बोन्स, मसल्स एंड ऑल सच थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड, राइट। ये सब चीजें मैटर में आती है, राइट, दैट इज मैटर। तो कोई बॉल अगर प्लास्टिक की है तो द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक इन दैट, तो प्लास्टिक अब वो मैटर हो जाएगा, राइट। ये जो है हमें समझने की जरूरत है, व्हाट इज दैट मैटर। मैटर कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, राइट, इट कैन बी एनीथिंग। अब देखो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया जाता है बाय स्मॉल m एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास इज मास, इट जस्ट डिस्क्राइब्ड बाय अ नंबर, राइट। ये सिर्फ एक नंबर के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई बोले दैट एक पर्टिकुलर बॉडी है जिसमें 10 kg मास है, तो आप समझ जाएंगे 10 kg मास मतलब 10 kg मास, नो डायरेक्शन एट ऑल। ऐसा नहीं होता है कि ईस्ट में 10 kg मास है एंड वेस्ट में 30 kg मास है, ऐसा नहीं होता है, राइट। देयर इज नो डायरेक्शन एसोसिएटेड विद मास, तो दैट्स व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी। अब देखो नेचर, अ बॉडी विद मोर मास नीड्स अ ग्रेटर एफर्ट फोर्स टू मूव इट फ्रॉम रेस्ट और स्टॉपिंग इट फ्रॉम मोशन, जैसा कि हमने इनर्शिया में पढ़ा था, राइट। इनर्शिया में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये देखा था जब हम फर्स्ट टाइम न्यूटन के लॉ को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, फर्स्ट लॉ को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें यही बोला गया था कि जब तक एक बॉडी पे आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे देते, वो अपने जो उसका इक्विलिब्रियम स्टेट है, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट है, चाहे वो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है, वो चेंज नहीं होता, राइट। तो वो ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से वो खुद से अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज नहीं कर सकता। द रीजन इज दिस मास, राइट। इस मास की वजह से ही इनर्शिया डेवलप होता है एंड ड्यू टू विच बॉडी डजंट मूव इटसेल्फ, ठीक है। अब आपके रूम में अगर कोई टेबल रखा हुआ है तो वो खुद से मूव नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसके पास इनर्शिया है, और इनर्शिया किसकी वजह से है, मास की वजह से है, ऑलराइट। सो बेसिकली दिस मास इज द ओनली बेसिक थिंग जिसकी वजह से हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझ सकते थे, राइट। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जितना ज्यादा मास होगा किसी बॉडी का, उस बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए आपको उतना ही एफर्ट, उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भारी सा बक्सा जो है, भारी सा एक बॉक्स अगर आपको मूव करना है, तो आपको उसके बराबर जो उसका मास है एक्चुअली, उसके ही यू कैन से रिलेटिव में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट, ताकि वो फोर्स होके, यू नीड ग्रेटर फोर्स टू डू दैट। वहीं एक हल्का सा बॉक्स होगा तो थोड़े से फोर्स से आप उसको मूव करवा सकते हैं, राइट। तो ये डिपेंड करेगा कितना फोर्स लग रहा है, कौन डिपेंड कर रहा है, उसके मास पे। जितना ज्यादा मास उतना ही आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना कम मास उतना ही कम आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। अब देखो ये जो बॉडी होती है वो क्या होती है, एग्जिबिट्स इनर्शिया, उस इनर्शिया की प्रॉपर्टी को शो करती है, राइट। इसी वजह से ये जो मास है वो इनर्शिया ऑफर करता है, एंड दिस मास इज नोन एज द इनर्शियल मास, ऑलराइट, दिस इज द इनर्शियल बॉडी। और एक और बात बहुत, कि कोई भी बॉडी, ऐसी बॉडी प्रेजेंट ही नहीं है जिसके पास मास नहीं है। एवरी सिंगल बॉडी पार्टिकल हैव मास, वी ऑल नो। इलेक्ट्रॉन के पास भी मास होता है, प्रोटॉन के पास भी मास होता है। जब ऐसे पार्टिकल जो दिखाई भी नहीं देते उनके पास मास होता है, तो सोचो हर एक ऑब्जेक्ट के पास मास होगा, क्योंकि वो तो दिखाई दे रही है, राइट। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो दैट मासलेस बॉडी डजंट एग्जिस्ट। एवरी सिंगल बॉडी पार्टिकल हैव सम मास, ऑलराइट, भले ही कम हो, भले ही बहुत कम हो, बट इट हैज सम मास, ऑलराइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेजरमेंट ऑफ मास। मास को मेजर करने के लिए हम हमेशा बीम बैलेंस यूज करते हैं, राइट।
इस तरीके का बीम बैलेंस आपने देखा होगा, पुराने ज़माने में ये ज़्यादा यूज़ होता था, आजकल डिजिटल आ रहे हैं। ऑलराइट, तो ये जो है ये बीम बैलेंस है, और इस बीम बैलेंस की हेल्प से हम मास को जो है कैलकुलेट करते हैं क्योंकि दो बॉडी का मास इक्वल है या नहीं। एक्चुअली में ये जो है ये मास को मेजर करने की जगह पे ये मोमेंट मेजर करता है। जैसे देखो डिस्टेंस बिटवीन दिस, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है इस बीम बैलेंस की, वो ये होती है, ये जो हमारा सेंटर पार्ट है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस एंड यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आर इक्वल, राइट, इक्वल होते हैं। अब यहां पर हम किसकी बात कर सकते हैं, मोमेंट की बात कर सकते हैं। मोमेंट क्या होता है, डिस्टेंस divided by the multiplied by the force, right? So you can say distance multiplied by the force. अब तुम सोचोगे यहाँ फोर्स कौन सा आया, ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से यहाँ फोर्स लग रहा है, राइट, इसका जो वेट है वो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली द मोमेंट ऑफ दैट, राइट। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल। जब ये इक्वल हैं, ठीक है, तो इस बॉडी को, इस पॉइंटर को बिल्कुल बीचों बीच आने के लिए क्या चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम मोमेंट चाहिए दोनों साइड में, राइट। तो यहाँ पर भी वेट अगर इक्वल होता है, यहाँ के वेट से अगर इक्वल होता है, दोनों तरफ अगर वेट इक्वल हो गया तो ये वाला मोमेंट, ठीक है, ये वाला डिस्टेंसेस मल्टीप्लाइड बाय दिस वेट विल बी गिव यू द सेम मोमेंट, एंड जिसकी वजह से हम बोलने वाले हैं कि सेम टू सेम मास है, ठीक है, इक्वल मास है, राइट। यही चीज हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं मेनली क्योंकि हमें पता है कि भाई मास को मेजर करने के लिए भी हम किसका सहारा ले रहे हैं, वेट का सहारा ले रहे हैं, दैट इज द मोमेंट, ठीक है, मोमेंट के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली ये बीम बैलेंस से मेजर होता है। आप यहाँ देख सकते हैं मास ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय अ बीम बैलेंस बाय कंपेयरिंग द मास विद द बॉडीज ऑफ द नोन मास। क्योंकि हम पहले क्या करते हैं, पहले आयरन का कोई यू कैन से अ फिक्स्ड पीस, जिसका आपको पता है कि भाई इसका मास 1 kg है, तो वो आयरन का पीस लेके एक तरफ रख देते थे, राइट, और दूसरे जो आपका प्लेट है उसके अंदर आप अपना कोई भी फ्रूट, कोई भी वेजिटेबल रखते थे, एंड वी कंपेयर बोथ द मासेस, राइट, कि भाई कौन सा बराबर है। बराबर होने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग बीम बैलेंस का भी यूज करते हैं यूजिंग द मोमेंट। अब देखो एट वन प्लेस बॉडीज ऑफ सेम मास हैव सेम पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन दैम। अगर हम एक ही प्लेस की बात करें, ये देखो अगर हम बीम बैलेंस देख रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर मेजरिंग दैट मास ऑन वन प्लेस, राइट। दो बॉडीज के ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटी है दैट वुड बी सेम। अगर दोनों का मास सेम है तो इन दोनों पे लगने वाला जो वेट है दैट वुड बी ऑल्सो सेम, राइट। तो अब यहाँ देखो किस तरीके से मोमेंट के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अ बीम बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। Bodies of equal masses having equal weights have equal and opposite moments about fulcrum of the balance. Fulcrum of the balance, this one. This is the fulcrum of the balance, ठीक है। तो इस fulcrum से दोनों का masses अगर same होगा तो इसका मतलब दोनों पे जो gravity का force लग रहा है that would be same, यानी कि दोनों का weight same, right? अब देखो when suspended at equal distances from the fulcrum, जब दोनों ही bodies को लटकाया जाता है same distances पे, यहाँ से देख रहे हो fulcrum से एक साइड का डिस्टेंस, fulcrum से दूसरे साइड का डिस्टेंस शुड बी इक्वल, राइट। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज सेम। अगर ये दोनों सेम हुए तो सेम मासेस पे सेम ग्रेविटी वर्क करेगी, एंड दिस पॉइंटर विल बी शोइंग यू दैट द बोथ मासेस आर इक्वल, राइट। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ फुलक्रम, राइट। एंड जैसे ही ये चीज हॉरिजॉन्टल हुई तो मतलब बहुत ही बढ़िया हो रहा है, राइट। दैट मीन्स देयर मास आर द इक्वल, राइट। नोट दिस डाउन, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग्स। ऑलराइट, अभी हम लोगों ने यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ मास देखा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेट। व्हाट इज दैट? लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो देखो वेट का मतलब अब हमें पता चल चुका है कि अर्थ जो पुल लगाती है किसी भी बॉडी पे दैट इज इट वेट्स, ठीक है, वो उसका क्या होता है, वेट होता है। तो बेसिकली दैट फोर्स इज वेट। वेट इज एक्चुअली अ फोर्स, राइट। तो ये जो मास है वो तो कंटेंट हुआ, भाई बॉडी के अंदर कितना मैटर है वो कंटेंट, राइट। लेकिन वेट जो है दैट इज द फोर्स, वो भी अप्लाइड बाय द अर्थ, राइट। तो देखो फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। इट इज डिनोटेड बाय W, एंड दिस इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इसका डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, ठीक है। इसका डायरेक्शन कहाँ होता है, हमेशा सेंटर जो है टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। बेसिकली
पूरे अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट नीचे गिर रही है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट पे वेट अप्लाई हो रहा है, सबकी सब सेंटर की तरफ चल रही है, मतलब सबकी सब अट्रैक्टेड हो रही है सेंटर की तरफ। ऑलराइट, एक्सप्रेशन अगर हम देखना चाहें इसका फॉर्मूला, तो देखो मास कितना है बॉडी का, लेट्स से m है बॉडी का मास, एक्सेलरेशन कितना है, g है, लेट्स से, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, हमें ये बात पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये वाला फॉर्मूला तो हमने न्यूटन की सेकंड लॉ से ही देख लिया था। अब देखो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो w दैट इज द फोर्स इज इक्वल टू मास multiplied by the acceleration due to gravity. So this is the formula for the weight. This is the formula for the weight. W equals to mg. And remember, this weight is a variable. It can change because g can change. Mass तो change नहीं होगा, but this g can change, right? So we can get the different values at w at different places. Alright, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। Weight का जो nature होता है, what is that? It is of course vector nature होता है। उसके अलावा the weight of a body will vary from place to place due to variation in the value of g. और अगर अर्थ की बात करें, अर्थ के सेंटर पे बात करें, तो g बराबर जीरो होता है। दैट मीन्स एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द वेट वुड बी जीरो, राइट। उसके अलावा देखो मेजरमेंट, इसको मेजरमेंट करने के लिए वी ऑलवेज यूज स्प्रिंग बैलेंस। दिस इज द स्प्रिंग बैलेंस। यहाँ पे देखो, यहाँ पर होती है एक स्प्रिंग, ठीक है। जैसे ही आप क्या करते हो, इस हुक पे कोई ऑब्जेक्ट को टांग देते हो, लेट्स से कि आप किसी स्टोन का मास जो है, उसका स्टोन का वेट देखना चाहते हो कि भाई स्टोन के ऊपर जो अर्थ है वो कितना पुल लगा रही है। इफ़ यू वांट टू नो दैट, तो आप इस हुक पे उस स्टोन को टांग दोगे, हैंग कर दोगे, एंड देन क्या होगा, ड्यू टू इट्स वेट ये जो स्प्रिंग है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा यू कैन से स्ट्रेच हो जाएगी। एंड स्ट्रेच होने के बाद यू कैन सी दीज नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो यूनिट्स हैं, एक तो न्यूटन यूनिट है, दैट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, एक GF है, दैट इज द ग्राम फोर्स, राइट, दैट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, वी हैव स्टडीड दैट, राइट। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, इनसे इन रीडिंग से यहाँ पर एक पॉइंटर है, वो पॉइंट आउट करेगा। उस पॉइंटर की हेल्प से आप पता कर पाएंगे कि उस स्टोन पे कितना वेट अर्थ लगा रही है। ऑलराइट, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। नाउ लेट्स सी द डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड द वेट। सो बेसिकली यहाँ पे भी काफ़ी कुछ डिफरेंसेस हैं और बहुत ही यू कैन से आप इजीली उनको लिख सकते हैं। जैसे मास तो क्या हुआ कि भाई एक बॉडी के अंदर कितना कंटेंट है, ठीक है, उसके अंदर कितना मैटर है, द अमाउंट ऑफ मैटर, वो हम लोग बोल सकते हैं। बट व्हाट इज दिस वेट? वेट इज एक्चुअली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ ऑन अ बॉडी, राइट। यहाँ पे देखो मास होता है स्केलर क्वांटिटी, नो डायरेक्शन। वेट होता है वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ऑलराइट, मास की जो एसआई यूनिट होती है वो केजी होती है, वेट की एसआई यूनिट न्यूटन होती है बिकॉज इट इज अ फोर्स। ऑलराइट, उसके अलावा देखो मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल द प्लेसेस। मतलब आप जुपिटर पे चले जाओ, वीनस पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, सन पे चले जाओ, अर्थ पर भी कहीं पर भी चले जाओ, द मास वुड बी द सेम, ठीक है, मास चेंज नहीं होता है। ऑलराइट, लेकिन ये जी चेंज होता है, जिसकी वजह से ये डब्ल्यू भी चेंज होगा, दैट मीन्स वेट चेंजेस according to the acceleration due to gravity. Alright, मास बिल्कुल भी जीरो नहीं हो सकता, बट वेट जीरो हो सकता है अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो गया। और ये कंडीशन कहाँ मिलेगी? सेंटर ऑफ द अर्थ पे। ऑलराइट, मास को हम बीम बैलेंस से मेजर करते हैं, वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं, राइट। तो अब हमें मास और वेट के बारे में डिफरेंसेस पता है, उनका नेचर पता है, उनको मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट पता है, SI यूनिट्स, द मेन concept of mass and weight, now we know that, right? And इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकें। ऑलराइट, सो देखो आज जो है हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का चेंज बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूड देखा, वी हैव सीन द मास एंड द वेट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेटलेसनेस एंड द केपलर लॉज, ठीक है, ये चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.